Namaste and welcome to the Ministry of Social Science. My name is Vivek Pandya and today we are going to continue with the first chapter of Class 10 History for CBSE students. So, I want to tell you something about myself. Uh, I'm a history teacher at Chaitanya School, Gandhinagar, and since last 5 years I have been teaching social science subjects for various institutes, and since a year I have been associated with the Chaitanya School in Gandhinagar. So that was just something I would just like to tell you about myself, and then we will proceed with the chapter. And I guess this chapter we are going to complete in the next five to I mean the total number of videos for this chapter, the first chapter, it would take around 5 to 7 videos. So let us begin. So in this chapter, what we have learned so far, I hope you have gone through the previous videos, the 3 videos of this chapter, and we talked about the painting of Frederick Sorio. Then we discussed the meaning of nationalism in the first video. Then we saw the difference between the modern states and nation states. We also went ahead and saw what is the meaning of nation, which was defined by Ernst Renan. Then we saw how France, it helped the idea of nation, it helped the idea of nationalism, it took that idea forward, and it united many other places of Europe where it led the movement of nationalism. Then further, we saw how that nationalist movement was little bit struggling during the period of Napoleon. Then Napoleon lost the war, and eventually there was the Treaty of Vienna. Then we also looked at the social fabric of Europe, how middle class emerged, and how did they were demanding some powers in decision making. Then we saw the last thing we saw was conservatism and the Treaty of Vienna. So what happened after the Treaty of Vienna was that a new conservative order was established in Europe. So that was where we left in the previous video, and we are going to start from there. So मैंने बताया था कि there was an establishment of a new conservative order in Europe. So what was that conservative order? Conservative order का मतलब क्या होता है? So there were many countries were set up in 1815 which were all autocratic. All these regimes which were established, they were all autocratic. वो लोग जो भी डिसीजंस ले रहे थे, they were slamming those decisions on the people of Europe. तो कैसे होता था ये? So इतना तो समझ में आता है कि ऑल दीज रिजाइम्स दे वर ऑल ऑटोक्रेटिक, वो सारे डिसीजंस खुद ही ले रहे थे, और ये लोग क्रिटिसिज्म और डिसेंट को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते थे. दे वर नॉट अलाउिंग क्रिटिसिज्म. आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते हो. एंड अगर आपने कभी भी अगर गवर्नमेंट की लेजिटिमेसी को अगर कभी क्वेश्चन किया तो वो अलाउ नहीं करेंगे. सो नथिंग कुड बी क्वेश्चन. और एंड इफ़ यू एज यू विल प्रोसीड इन द 10th स्टैंडर्ड in civics, there is a chapter, the journey is based on democracy, and we are judging democracy since 9th standard. और जब तुम्हारा इस साल का जब सिविक्स जब खत्म होगा तब तुमको ये लेजिटिमेसी का कंसेप्ट जो है वो ज़्यादा और डिटेल में समझ में आएगा. वाई? बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कि वो जो गवर्नमेंट जो इस्टेब्लिश होती है इट शुड बी लेजिटिमेट. तो अगर यहाँ पे अगर वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट नहीं थी एंड द पीपल वर इवन नॉट अलाउड टू क्वेश्चन दैट गवर्नमेंट, तो इस तरह से वो एक कंजर्वेटिव ऑर्डर वॉज इस्टेब्लिश. जो ओल्ड सिस्टम जो था उसका एक रिवाइवल हुआ था, एंड एवरीथिंग वॉज बैंड. वहाँ पे सेंसरशिप थी, एंड देवर लॉज विच आर कंट्रोलिंग वट एवर दैट वॉज सेड इन द न्यूज़ पेपर्स, बुक्स, प्ले, सॉन्ग्स. जो जगह थी जहाँ पे लिबर्टी एंड फ्रीडम इसकी अगर कहीं पे बात हो रही है, इट वॉज कर्ब्ड. ये वॉट दे वॉन्टेड वॉज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी मेमोरीज है उसको डिमिनिश करो. बट द फनी पार्ट वॉज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन की मेमोरी इतनी ईजिली डिस्ट्रॉय आप कभी नहीं कर सकते हो. यू कैन नॉट रिमूव एवरीथिंग. सो देवर अदर पीपल जिनको हम लोग बोलते हैं द रिवॉल्यूशनरीज. ये जो रिवॉल्यूशनरीज थे दे केम अप, और इन लोग ने एक अलग तरीके का एक स्ट्रगल वहाँ पे स्टार्ट किया था. बट बिफोर दैट दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ, जो नॉट अ फोटोग्राफ, इट इज़ अ कार्टून, इट इज़ अ कैरिकेचर जो 1820 में क्रिएट किया था. एंड इसके ऊपर यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन है विच सेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ टुडेज मीटिंग. यहाँ पे ये जो लोग बैठे हैं उसके अंदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द मीटिंग, हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस. मतलब बोलना अलाउड नहीं है, पब्लिश करना अलाउड नहीं है, कुछ अलाउड नहीं है. गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप क्वेश्चन तक नहीं कर सकते हो. सो दे आर आस्किंग इन अ कॉमिकल वे. कैरिकेचर का मतलब ही होता है कि एक रियल लाइफ इवेंट को थोड़ा बहुत
कॉमिक वे में वो प्रेजेंट करते हैं. दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज अ कार्टून इन नॉर्मल टर्म्स, ठीक है, इन लेमेन टर्म्स. पर उसको टेक्निकल टर्म्स के अंदर उसको कैरिकेचर बोलते हैं, जहाँ पे थोड़ा कॉमिक एलिमेंट ऐड करके वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं. सो हियर इज अ सरकास्टिक स्टेटमेंट विच सेज हाउ लॉन्ग विल थिंकिंग बी अलाउड टू अस, मतलब सोचना भी हमको कहाँ तक अलाउ करेंगे. फिर यहाँ पे एक बोर्ड है, वो बोर्ड के ऊपर यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे विच द मेंबर्स ऑफ द मीटिंग दे हैव टू फॉलो, जहाँ पे रूल्स लिखे ऐसे लाइक साइलेंस इज द फर्स्ट कमांडर ऑफ दिस लर्नड हिस्ट्री, देन टू अवॉइड द इवेंचुअलिटी वेयर बाय अ मेंबर ऑफ दिस क्लब मे सकम टू द टेम्पटेशन ऑफ स्पीच, मजल्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स अपॉन एंटरिंग. ठीक है, जो भी यहाँ पे आएगा उनको ये मुंह के ऊपर ये एक तरह से पट्टी बांध के बैठना है. ठीक है, और आप यहाँ पे बिल्कुल भी कभी भी आपकी जो स्पीच है, आप जो बोल रहे हो, अगर उस पर अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, यू वोंट बी अलाउड इन द मीटिंग. तो दिस वॉज समथिंग विच वॉज प्रिपेयर्ड बाय अ पेंटर. पेंटर का नाम नहीं दिया, बट दिस पेंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट डिनोट्स, ये समझाता है कि जो कंजर्वेटिव ऑर्डर जो वहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था उसका मीनिंग क्या था. देयर वॉज सेंसरशिप, ऑटोक्रेटिक रिजाइम. तो उस ये फोटोग्राफ देख के वो चीज़ हमको समझ में आ जाती है. देन देयर वॉज अनदर पार्ट कि कुछ लोग थे हु वर फाइटिंग अगेंस्ट इट. जिन लोग ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की जो मेमोरीज थी, दे वर नॉट अलाउिंग टू लेट दोज मेमोरीज गेट आउट ऑफ द हेड्स ऑफ द पीपल. ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे रिवोल्यूशनरीज थे. दे वर ट्राइंग टू एस्टैब्लिश सीक्रेट सोसाइटीज़. फिर वो लोग अपने आइडियाज़ को स्प्रेड करने का ट्राई कर रहे थे. एंड उनका एक ही कमिटमेंट था. व्हाट दे वांटेड वाज दे वांटेड टू डिफाई द मोनार्कियल फॉर्म्स. उनको दीज रिवोल्यूशनरीज, दे वर द पीपल हु ओपोज द मोनार्कियल फॉर्म्स विच वर एस्टैब्लिश बाय द ट्रीटी ऑफ वियना. ठीक है, रिवॉल्यूशन का हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, सोसाइटी के अंदर एक कंप्लीट चेंज. नाउ द पीपल हु आर फाइटिंग फॉर दिस चेंज, जो इस चेंज के लिए जो स्ट्रगल करते हैं, इन लोगों को हम लोग बोलते हैं द रिवॉल्यूशनरीज. सो दीज वर द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारी. ये ऐसे लोग थे कि दे वांटेड टू एस्टैब्लिश एंड दे वांटेड टू नाउ अंडू एवरीथिंग विच वाज इन्फोर्स्ड बाय द ट्रीटी ऑफ वियना. तो बेसिकली इनको ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर जो भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, जो ऑटोक्रेटिक रिजाइम जो एस्टैब्लिश हुई थी, उसको इन लोग को डिसमेंटल करना था. ठीक है, सो इसके लिए भी हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ ग्युसेप्पे मजीनी. ठीक है, अब ये मजीनी जो था, ये मजीनी ही वॉज बॉर्न इन इटली. इटली के अंदर एक प्लेस था जेनोवा, वो वहाँ पे बॉर्न हुआ था. ही वॉज लाइक भगत सिंह ऑफ यूरोप. ठीक है, भगत सिंह फॉर लिटरली फॉर इटली. मतलब 24 की एज के अंदर ही वॉज अरेस्टेड, ही वॉज एग्जाइल्ड. ठीक है, भगत सिंह को तो फांसी दे दिया था, बट ही वॉज ऑल्सो अ रिवोल्यूशनरी. एंड मजीनी ने बहुत सारे इंडियन लीडर्स को लिटरली इंस्पायर किया था, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया था. नाउ ही वॉज बॉर्न इन जेनोवा इन 1807 एंड एट द एज ऑफ 24 इसने एक रिवॉल्यूशन अटैम्प्ट किया था इन लिगुरिया. ठीक है, तो उसको वहाँ पे अरेस्ट कर दिया. देन ही एस्टैब्लिश वेरियस सीक्रेट सोसाइटीज़ लाइक यंग इटली और यंग यूरोप. ठीक है, सेम वे हमारे कंट्री के अंदर भी वीर सावरकर ने भी इसके जैसा एक 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 क्या बोलते हैं, एक छोटा सा सीक्रेट सोसाइटी एस्टैब्लिश किया था. इट्स नेम वाज नव भारत. ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे कंट्री के अंदर भी यहाँ से कनेक्ट हुई थी. हमारे कंट्री के मेंबर्स को भी, हमारे रिवॉल्यूशनरीज को भी यहाँ से इंस्पिरेशन मिला था. नॉट जस्ट द मेंबर्स ऑफ यूरोप बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. और मजीनी एक चीज़ बोलता था कि गॉड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड. यू नीड टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट, क्योंकि ये लाइन ये लोग पूछ के लिख के पूछ सकते हैं इन MCQs या फिर इन ऑब्जेक्टिव्स की हु सेड दिस स्टेटमेंट. एंड what he thrived for was he wanted to unite Italy. इटली के यूनिफिकेशन के लिए इसने बहुत स्ट्रगल किया था. इटली एक ऐसा प्लेस था कि उसके अंदर इट वॉज फ्रेगमेंटेड इनटू वेरियस पोर्शंस. मतलब वो किंगडम पैचवर्क था स्मॉल स्टेट्स का. मतलब वो होते ना, हम स्टिचेस लगा के कपड़े को सिल के रखते हैं, वैसा ये एक पूरा का पूरा किंगडम इस तरह से बना हुआ था. ठीक है, इट वॉज एन अलायंस ऑफ नेशंस. नाउ ही वांटेड टू यूनाइट इटली. एंड इस बुक के अंदर आगे एक टॉपिक आएगा इस चैप्टर के अंदर अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ इटली. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एफर्ट्स ऑफ ग्युसेप्पे मजीनी. ठीक है, एंड इन दिस फोटोग्राफ यू कैन सी ग्युसेप्पे मजीनी एंड द फाउंडिंग ऑफ द यंग यूरोप इन बर्न. ठीक है,
तो ये भी एक पेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मजीनी को देख के ड्यूक मेटरनिच जो था उसने एक स्टेटमेंट दिया था दैट ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर इन यूरोप। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर इन यूरोप। सो दिस स्टेटमेंट वॉज गिवन बाय ड्यूक मेटरनिच। ड्यूक मेटरनिच का एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आएगा, बट एंड अगेन ऑल दी स्टेटमेंट्स जो ऐसे इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर अगर जो दिए हैं, इवन इफ नहीं दिए, दैट बिकम्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। नाउ लेट्स मूव अहेड कि कंजर्वेटिव ऑर्डर तो एस्टैब्लिश हो गया, रिवोल्यूशंस भी हो गए, आई मीन रिवोल्यूशनरीज भी आ गए, बट व्हेन डिड थिंग्स स्टार्टेड टू चेंज, सब कुछ बदलने कैसे लगा? तो 1830s तक 15 साल तो इनको काफ़ी सारा इनको लग गया था। इट वॉज लाइक रिवाइवल कैसे होगा, कैसे सारी सिचुएशंस चेंज होगी, वो अभी तक किसी को समझ में नहीं आया था। एंड द कंजर्वेटिव रिजाइम्स जो थी, दे वर ऑल्सो ट्राइंग टू कंसोलिडेट देयर पावर। लिबरल नेशनलिस्ट लोग भी थे, वो लोग भी अपने एफर्ट्स को इंक्रीज कर रहे थे। दे आर ट्राइंग टू रिवोल्यूशनाइज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ यूरोप। ठीक है, इटली के अंदर, जर्मनी के अंदर, आयरलैंड, पोलैंड, फिर ओटोमन एम्पायर, सब जगह पे वो लोग बिखरे थे। एंड उनके आइडियाज़ धीरे धीरे लिबरल नेशनलिस्ट जो लोग जो थे, वो लोग मिडिल क्लास लोग और सब लोग साथ में आके दे वर कमिंग टुगेदर, और उनका सोच एक तरफ जा रहा था अगेंस्ट द कंजर्वेटिव ऑर्डर। ठीक है, एंड द फर्स्ट अपहीवल जो कंजर्वेटिव रिजाइम के अगेंस्ट हुआ था, दैट अगेन हैपेंड इन फ्रांस। यस, तो जुलाई 1830 के अंदर एक और रिवॉल्यूशन हुआ एंड द बॉर्बन डायनेस्टी ऑफ फ्रांस, इट वॉज अगेन डीथ्रोन्ड बाय द लिबरल नेशनलिस्ट। ठीक है, वो सेम लोग हैं जो लास्ट ईयर हम लोग ने देखे थे, मिडिल क्लास लोग, द वर्कर्स, आई मीन द प्रोफेसर्स, या फिर स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स, या फिर बिजनेस क्लास के लोग। ठीक है, कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग, ठीक, जिन लोग को इकोनॉमिक लिबरलिज्म चाहिए था। इवन इन दिस चैप्टर वी रेड अबाउट देम। तो यही लोग थे, वो लिबरल नेशनलिस्ट थे। एंड दे डीथ्रोन्ड द बॉर्बन डायनेस्टी। और 1815 से ये आफ्टर द सॉरी, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है, जुलाई 1930 नहीं, इट्स जुलाई 1830। सो मेक श्योर यहाँ पे आप कभी आप गलती नहीं करो, इट्स 1830 नॉट 1930। सो एंड सो व्हाट आई वाज सेइंग वाज दैट बॉर्बन डायनेस्टी वाज डीथ्रोन्ड, एंड इसको छोड़ के जो लिबरल रिवोल्यूशनरीज थे, दे इंस्टॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के अंदर लुई 16 को डीथ्रोन करके दे एस्टैब्लिश्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अगेन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वाज एस्टैब्लिश्ड एंड नाउ लुई फिलिप वाज देयर हेड। ठीक है, उस टाइम पे लुई 16 को ही रखा था, बट दिस टाइम लुई फिलिप वाज द हेड। एंड अगेन ड्यूक मेटरनिच ने एक और स्टेटमेंट दिया दैट व्हेनेवर फ्रांस स्नीजेस एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। ठीक है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट गिवन बाय ड्यूक मेटरनिच। और ऐसा इसने क्यों बोला था? क्योंकि फ्रांस के अंदर जब भी कोई भी एक वेव उठता है, इट इग्नाइट्स अ फायर जो पूरे यूरोप के लोगों को वो कनेक्ट करती है। पूरे यूरोप के जितने भी लोग हैं उसके अंदर वो एक फ्लेम इग्नाइट करता है। एंड इट हैपेंड इवन इन द 1830s। कैसे हुआ? तो बेल्जियम, जिसके बारे में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बेल्जियम अबाउट विच वी रेड इन द फर्स्ट चैप्टर ऑफ सिविक्स। यस, सो बेल्जियम वॉज अ पार्ट of the United Kingdom of Netherlands, which was created during the conservative order of 1815, the Treaty of Vienna. ठीक है, सो बेल्जियम के अंदर एक अपराइजिंग हुआ इन ब्रसेल्स, एंड बेल्जियम इट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नेदरलैंड्स, और बेल्जियम खुद एक अलग से कंट्री बना। सो दिस हैपेंड इमीडिएटली आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ द जुलाई रिवॉल्यूशन ऑफ 1830s। ठीक है, एंड आफ्टर दैट Duke Metternich said this: whenever France sneezes, entire Europe catches cold. The next part is the Greek War of Independence. See, after this chapter is going to change. इसके बाद हम लोग ऐसे बड़े बड़े मूवमेंट्स नहीं देखेंगे। एक ऐसा एक चीज़ देखेंगे कि जो एक फर्स्ट एलिमेंट होगा। सी, कंट्री इंडिपेंडेंट होता है, बेल्जियम की बात अलग है। बेल्जियम इंडिपेंडेंट हुआ, वहाँ पे भी एक कॉमन लैंग्वेज, मे बी इट वुड हैव बीन अ फैक्टर, बट what mobilized the people of Europe? What happened with them? इनको कब से लोग स्ट्रगल कर रहे थे? They were liberals, they were radicals, they were nationalists, but इकोनॉमिक लिबरलिज्म, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों की वो लोग बातें कर रहे थे, बट दे वर नॉट एबल टू कम टुगेदर ऑन अ कॉमन प्लेटफॉर्म। तो कुछ ऐसा चाहिए था बिकॉज ऑफ विच द पीपल कुड बी यूनाइटेड। तो यहाँ पे इन द ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इनको ये चीज़ मिल गया, बट फॉर दैट वी नीड टू सी कि ग्रीस कहाँ पे है। नाउ सी, You see here this Ottoman Empire, ये जो Ottoman Empire है, this is the modern day Turkey।
ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आ जाया इस्तांबुल या फिर यू कैन से कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे आया ग्रीस, दिस इज इटली। दिस वॉज द मैप बाउंड्रीज ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 1815 द ट्रीटी ऑफ वियना। अब इसको चेंज करके हम लोग देखते हैं ये वाले मैप को, द मैप ऑफ मॉडर्न यूरोप, ठीक है। यू कैन सी दैट दिस इज ग्रीस एंड दिस इज इस्तांबुल, दिस इज तुर्की। सो ग्रीस, इट वॉज अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस 1815, ठीक है। 1815 से, सॉरी, सिंस द फिफ्टीन सेंचुरी से ग्रीस वॉज अ पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर एंड द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप, इट स्पार्क्ड ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस अमंग द ग्रीक्स, ठीक है। 1821 से ये लोग स्ट्रगल करना स्टार्ट कर रहे थे कि इनको एक अलग अपना खुद का एक कंट्री चाहिए। बट ये क्यों हुआ? वाई डिड द पीपल ऑफ ग्रीस दे ऑल कम टुगेदर कि इनको एक खुद का एक सेपरेट कंट्री चाहिए? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन? सो द रियलाइजेशन वाज कि उनका एक एंशियंट ग्रीक कल्चर था। अब ये कल्चर एक ऐसा चीज़ है कि जिसने इन लोगों को यूनाइट किया। दीज पीपल दे वर यूनाइटेड अगेंस्ट अ कॉमन कल्चर, ठीक है। उनके आगे एक मुस्लिम एम्पायर था एंड दिस वॉज अ स्टेज वेयर द मुस्लिम एम्पायर कुड हैव एक्सपांडेड इनटू यूरोप। बट इनको ये चीज़ रियलाइज़ हुआ कि ग्रीक कल्चर जो है, रोमन कल्चर जो है, कैथलिक्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इट प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल। तो जितने भी एलाइट्स थे थ्रू आउट द यूरोप, वो सारे के सारे लोग इस मूवमेंट के अंदर वो लोग अपना सपोर्ट उनको देने लगे। एंड द पीपल ऑफ यूरोप, सबको इससे रिलेटेड एक सिंपथी थी फॉर द एंशियंट ग्रीक कल्चर। और हम लोग हमेशा बोलते हैं ना कि लैंग्वेज क्या काम का है, वॉट रोल डज लैंग्वेज प्ले, वॉट रोल डज मूवीज़ या फिर पेंटिंग्स, ये सब चीज़ों का फ़ायदा क्या है? सी द बेनिफिट, द रोल विच ऑल दीज थिंग्स प्ले, वो यहाँ पे देखने को मिलता है। कैसे? द पोएट्स एंड आर्टिस्ट दे लॉर्डेड ग्रीस एज अ क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। मतलब यूरोपियन सिविलाइजेशन आज जैसा भी है, उनका कल्चर जैसा है, उनका रिलीजन जैसा है, वो लोग जो भाषा बोलते हैं, एवरीथिंग वॉज बिकॉज ऑफ द ग्रीक कल्चर। उनका एंशियंट कल्चर जो था, एंशियंट ग्रीक कल्चर के वजह से पूरा का पूरा यूरोपियन सिविलाइजेशन एस्टैब्लिश हुआ है। एंड दे हैव अ कॉमन एनिमी। व्हाट वाज द कॉमन एनिमी? द मुस्लिम एम्पायर। सो अनदर न्यू कल्चर, इट कुड डिस्ट्रॉय देयर कल्चर। सो द पीपल ऑफ यूरोप, they came together. This was an event which mobilized the elites of Europe. पूरे के पूरे यूरोप से जितने भी लोग थे, they all came together. उन लोग सब ने इस चीज़ के लिए पार्टिसिपेट किया। देवर पोएट्स, एक पोएट का नाम भी दिया है, लॉर्ड बायरन। उसने फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे टू फाइट द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर ग्रीस, ठीक है। एंड 1824 के अंदर ही डाइड, लेकिन ग्रीस को फाइनली 1832 के अंदर इंडिपेंडेंस मिल गया था। और वो इंडिपेंडेंस मिला, उसको बोलते थे ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। दिस ट्रीटी रिकग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट स्टेट। एंड आफ्टर दिस, इन द नेक्स्ट वीडियो we'll start from exactly this point. रोमेंटिसिज्म से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये जो कल्चर वाला एलिमेंट जो यहाँ पे ऐड हुआ है ना, कल्चर की वजह से लोग यूनाइट हो रहे हैं, उससे हम लोग स्टार्ट करेंगे। दिस इज द होम असाइनमेंट फॉर द डे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस video with as many people as you can, and if you have any doubts you can mention it in the comment section. Thank you for